So starting with ionic bond definition, that the chemical bond formed by the transfer of electrons from one atom to another is known as ionic bond. It is formed between metals and non-metals. Right? So what type of bond is formed between metals and non-metals? It is actually ionic or electrovalent bond. So I want to discuss one example with you, which is of aluminium oxide. Right? This type of bond, yes, it is very, very strong. Right? And the compounds that are formed, they are brittle and they are in the shape of crystals. They have high melting boiling points, good conductor of electricity. So there are so many things that you will study. Right? So aluminium oxide, it is, I think, the fifth example that I am discussing with you. Aluminium oxide. So aluminium, it has atomic number 13 and its electronic configuration is what? 283, right? And oxygen, we know that electronic configuration is 26, atomic number is 8. So aluminium can lose 3 electrons and can acquire the noble gas configuration as that of neon, right? Whereas oxygen can gain 2 electrons and obviously it can also acquire the configuration of neon. So both of the ions will exist together and the ionic bond will be formed. When I was teaching you anodizing, I explained you that how Al2O3 is formed, but in not much in detail, because at that point of time you were not introduced to ionic bonding. But now you are in a condition to understand that how Al2O3 is formed, right? Which is very important compound. So it has 3 electrons, and oxygen, obviously it has extra 3 electrons which it can lose, right? Oxygen is short of 2 electrons, so it will gain 2 electrons from some source, but we are talking about aluminium oxide, so obviously it will gain those 2 electrons from aluminium. लेकिन अगर ऐसा होगा तो obviously aluminium will be left with 1 electron and the structure will be unstable. तो एक एक तो combine नहीं करेगा atom, तो कैसे होगा? Aluminium can donate how many electrons? Can donate 3 electrons. 3 electrons donate करता है, लेकिन अगर 2 aluminiums होंगे, 2 aluminium atoms होंगे, तो they can donate 6 electrons, right? Oxygen needs कितने चाहिए उसको? 2 electrons चाहिए. अगर 3 ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए? 6. तो बात बराबर हो रही है. इट विल बी मोर क्लियर. देखिए, दिस इज एल्यूमिनियम, इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? हम ऑक्सीजन की बात करते हैं. लेट्स मेक 2 एल्यूमिनियम एटम्स फर्स्ट. 1 2 3. आई एम शोइंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट? नाउ ऑक्सीजन आई एम शोइंग विद अ क्रॉस. 1 2 3 4 5 6 like this. आई होप ये क्लियर दिख रहा है आपको. देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी इलेक्ट्रॉन किसी भी इसमें एल्यूमिनियम एटम से ये वाला ले लेते हैं, आपको डजेंट मैटर. फिर इसके बाद आपने ये देखा, यहाँ पे भी कितने 8 हो गए ऑक्सीजन के पास. यहाँ पे इस तरह से समझ में आ रहा है. तो हमारे पास एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर हम लिखें ऐसा ही तो हो रहा है. 2Al3+, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने ऑक्साइड आइंस बन रहे हैं? 3 ऑक्साइड आइंस. और ये आप ऐसे शो कर सकते हैं, 2 नेगेटिव. इज दिस क्लियर? सो क्या बन गया हमारा? Al2O3, जो मैंने आपको उस वीडियो में ऐसे ही बस शो कर दिया था, क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग आपको पढ़ाया ही नहीं गया था. लेकिन इस तरह से जब भी फॉर्मेशन आपसे पूछी जाए तो यू हैव टू शो दिस थिंग, राइट? ऐसे आपको शो करना है कि कितने लूज करे, कितने गेन करे. ओके, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड.
एक और डिस्कस कर लेते हैं. नाउ लिथियम फ्लोराइड, the last example that I am going to discuss. Li is the symbol, atomic number 3, configuration will be 2,1, right? Fluoride, fluorine, atomic number 9 and configuration 2,7. You can easily see from here that lithium has one extra electron, one electron in the valence shell. So what, how it could be shown? Lithium minus electron, जैसे हमने लिखा था, Li plus हो गया, or you can write what? Li plus 2% electron. Okay, ऐसे शो कर सकते हैं. दिस इज व्हाट लिथियम आयन. इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, आयनिक bonds that positive part which comes from metal is usually shown in the first, जैसे आप लिख रहे हैं लिथियम फ्लोराइड, तो मेटेलिक पार्ट जो है वो पहले लिखेंगे, और नॉन मेटेलिक पार्ट जो नॉन मेटल से आया, जो नेगेटिव चार्ज है, एनाइन है, वो हम यूजुअली लास्ट में लिखते हैं. कन्वेंशनली ऐसे ही लिखा जाता है. नाउ फ्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, विल चेंज इनटू व्हाट? फ्लोराइड आयन. क्या बन जाएगा? फ्लोराइड आयन. तो ये आप ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखा सकते हैं. Li प्लस F 1 2 3 4 5 6 7. You can show like this. Li plus and this is F negative. This is what? Lithium fluoride. Okay, or you can write simply LiF. So going to discuss the last topic, properties of ionic compounds, in which I will discuss physical state, solubility, melting and boiling point, color of flame and electrical conductivity. So if we will see, there are activities given in your book which will help you in knowing what are the properties of these compounds. Physical state is what? They are solid, usually hard and brittle, that they can be broken easily, right? So solid, you have seen that they exist in crystalline form. crystals की form में structures exist करते हैं, like NaCl, sodium chloride. And solubility की अगर हम बात करेंगे, बहुत ही short में मैं इसको discuss करने जा रही हूँ, that they are soluble in what? Soluble in polar solvents. That we write. लिख लेते हैं. Soluble in water, which is a polar solvent. This point I made clear when I was explaining you acids and bases, right? Acid, bases and salt. Soluble in water or polar solvent. आप जानते हैं water has a polar structure. उसमें polarity होती है, means positive and negative charges are present, right? तो जब जैसे आप जानते हैं आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. सपोज आपने पोटेशियम क्लोराइड है, राइट, KCl. आपने पोटेशियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया वाटर में, तो क्या होगा? इट विल, वाटर की क्या टेंडेंसी है? इट विल लूजन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, राइट. इट विल और उसको क्या कर देगा वो? इट विल सेट देम फ्री. पोटेशियम और क्लोराइड आयंस को दोनों को अलग कर देगा. और कैसा, आपको पता है वाटर का कैसा स्ट्रक्चर होता है? H2O, राइट. फॉर्मूला क्या है? H2O, ये हमने पढ़ा था. दिस इज O. सपोज करिए ये O है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये मैं आपको नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है. आई थिंक ये क्लियर नहीं हो रहा, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले. ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है. तो अगर मैं आपको कहूँ, आप ऐसे रिप्रेजेंट इसको कर दीजिए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. तो अगर जब ये इफ़ यू डिसॉल्व KCl और NaCl, व्हाट विल हैपन? जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो सपोज करिए आपको पोटेशियम आयन है K+, ओके. ये क्या होगा? मैं एक आयन की बात अभी कर रही हूँ. देयर विल बी मैनी आयंस in a crystal of potassium chloride or sodium chloride. तो ये पोलर मॉलिक्यूल है,
वाटर, इसका नेगेटिव पार्ट विल अलाइन टूवर्ड्स द पॉजिटिव पार्ट और पॉजिटिव ये विल बी अवे। इस तरह से ये ऐसा बन जाता है। ये अब आपको याद आ गया होगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ। माइनस, ओके। ऐसे ही क्लोराइड आयन के साथ क्या होगा, Cl माइनस, यहाँ भी पोलैरिटी डेवलप हो, और हियर द वाटर मॉलिक्यूल, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल विल फेस द नेगेटिव पार्ट ऑफ द क्लोराइड आयन एंड नेगेटिव विल मूव अवे, इस तरह से करके, ओके। तो इस तरह से जब हम कोई भी आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो इस तरह का कुछ होता है, ओके। सो दैट इज व्हाई दे आर सॉल्युबल इन व्हाट, वाटर, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जिसमें कार्बन आ रहा होता है स्ट्रक्चर में, लाइक अल्कोहल आप बोल सकते हैं, उसमें इनसॉल्युबल आप सोडियम क्लोराइड को, विच इज़ कॉमन सॉल्ट, यू कैनॉट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड इन अल्कोहल, या फिर पेट्रोल, राइट, केरोसिन, इन सब चीज़ों में आप इसको आयनिक कंपाउंड्स को यू कैनॉट डिजॉल्व। Now let's talk about melting point and boiling point. You will find a table of melting and boiling point. See, this is the table that I want to show you, right? 3.4 ionic compound, melting point, boiling point. That is why I used to say that don't skip even a single line. Sodium chloride, lithium chloride, calcium oxide, magnesium chloride, and their melting and boiling points are given, right? And you can, if you notice that, then you will find that there are thousands or nearly 1,000, and you can see that the calcium oxide, its melting point, it's 2850. It is such a strong compound, isn't it? Boiling point 3120 Kelvin. So you can change it into degrees Celsius also, and then you will realize, just subtract by minus 273.15, and you will have the values in degrees Celsius. Suppose I am taking for sodium chloride, which is what, melting point is 1074. Melting point of NaCl is 1074 केल्विन। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 273 से, 801 के अराउंड आएगा, 801 डिग्री सेल्सियस। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट हाउ टफ इट इज, कितना स्ट्रॉन्ग है ये, एंड व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इट इज हेल्ड बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग electrovalent or ionic bond. There is a very strong attraction between the oppositely charged ions. That is why you will find that they are very thermally stable. जैसे सोडियम क्लोराइड है 801 डिग्री सेल्सियस पे, आपने कभी देखा है सोडियम क्लोराइड ऐसे ही मेल्ट हो रहा हो? अगर आपने स्पून पे आप रख के स्पून में थोड़ा सा वो लेके देख सकते हैं that it will take time to melt. But sugar, which is a covalent compound, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, it becomes charred, जल जाती है, ब्लैक सी हो जाती है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उसमें नहीं है जितना इस केस में सोडियम क्लोराइड, लाइक कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, किसी भी आयनिक कंपाउंड को आप ले लीजिए। नाउ कलर ऑफ फ्लेम, ये भी आप 11th स्टैंडर्ड में आप देखेंगे, फ्लेम टेस्ट करेंगे, राइट? उसमें भी आप क्या देखेंगे, जब आप कोई भी कंपाउंड, सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, बेरियम का, किसी के भी कंपाउंड्स को अगर आप उसको फ्लेम टेस्ट आप करेंगे, तो व्हाट यू विल फाइंड अ कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द फ्लेम, ओके। और उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि ओके, दिस सॉल्ट दैट हैज़ बीन गिवन टू यू इज ऑफ दैट मेटल, राइट? जैसे कि अगर आप सोडियम के कंपाउंड्स को अगर आप हीट कर रहे हैं तो गोल्डन येलो कलर आएगा, राइट हियर। सोडियम के कंपाउंड्स का कैसा कलर आएगा? गोल्डन येलो। बेरियम के ग्रीन सा कलर आता है, एप्पल ग्रीन कलर आता है। आयोडीन के पोटेशियम वायलेट कलर आएगा, ओके। तो ये कुछ ऐसे फ्लेम टेस्ट बहुत देखने में भी अच्छा लगता है, आप लोग कर जब साइंस लेंगे तो आप आराम से फ्लेम टेस्ट करेंगे, राइट? सोडियम के, पोटेशियम, कैल्शियम का कलर आप देखेंगे कैसा, किस कलर का कैसा फ्लेम टेस्ट देता है वो, ओके।
So this is about color of flame. Now electrical conductivity, ऐसे लिथियम रेड कलर देता है, सो ये अभी हमारे इतना उसमें नहीं है. Now let's come to इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो हमें समझनी है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं. जैसे सॉल्युबिलिटी है उस पर आ सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उस पर आ सकता है कि वाई दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और उस केस में आप एग्जांपल दे सकते, आपको याद होगा 6th स्टैंडर्ड में भी आपको टीचर्स ने दिखाया होगा कि एक तो ऐसे ही ऑर्डिनरी वाटर ले लिया, डिस्टिल्ड वाटर सपोज आपने लिया, और डिस्टिल्ड वाटर को जब आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, right, or when you conduct electricity, when you test that whether it is a conductor of electricity or not, तो distilled water तो conduct नहीं करेगा, ठीक है, will not conduct electricity. लेकिन if you dissolved NaCl which is a common salt in water, तो it start what? It will start conducting electricity. NaCl in water क्या हो जाएगा? Water becomes conducting now. It will become a conductor of electricity. Right? So what will you observe? You will find that if you have bulb, right, which will help you in knowing that whether this thing is a conductor of electricity or not, then what you will find that the bulb will start glowing. Right? In case of NaCl in water. So why? Because the conduction of electricity through a solution involves movement of charged particles. किसकी वजह से होती है? Movement of charged. देखिए कुछ questions बहुत हमें आसान लगते हैं, but you need to have a proper language how you are going to write that answer. Movement of charged particles. Electricity, conduction of electricity happens because of movement of चार्ज्ड पार्टिकल्स, राइट. सो अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो क्या होगा, जब वाटर में क्या होता है, विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स. जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आपने देखा वाटर में जैसे कि K+Cl- में, राइट, ब्रेक हो गया वो, और उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेगा. जैसे पोटेशियम क्लोराइड है या सोडियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम विल मूव टुवर्ड्स व्हाट, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्लोराइड आयन विल मूव टुवर्ड्स ऑब्वियसली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ऐसे मूव करेगा. दैट इज व्हाई द कंडक्शन विल हैपन. इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात होगी कि वेदर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, तो आपको याद रखना है अगर रिजिड स्ट्रक्चर है, आप ऐसे सोडियम क्लोराइड ले लें और आप सोचें कि हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं वेदर इट्स गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, तो नहीं करेगा जब तक आप इसको क्या नहीं करेंगे, मेल्ट नहीं करेंगे. मॉल्टन फॉर्म में क्या होता है, ऑब्वियसली जब आयनिक कंपाउंड व्हेन इट इज हीटेड, तो व्हाट हैपन्स, ऑब्वियसली द ions that were held together by very strong forces of attraction, they become weak. जो आयनिक अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है. और जब आयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, केमिकल बॉन्ड क्या है, इट इज एक्चुअली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वीक हो जाएगा, व्हेन इट वीकन्स, वीक हो रहा है, तो क्या होगा, आयंस कैन मूव फ्रीली, राइट. दैट इज व्हाई when we talk about sodium chloride electrolysis या फिर aluminium oxide के आप कर रहे हैं, तो you need to melt that compound so that the force of attraction become very weak, and this allows the movement of ions, and that is how the conduction of electricity happens. So this is all about ionic compounds. I covered obviously the most of the portion, और कुछ रह गया होगा then this is going to be covered in class.